say if else ladders, the pictorial representation would be in this way. Okay, so if else ladder means inside the if else we can put if, again inside the if else we can put. So in this way, if this condition is true, then this statement will execute. If it is false, then again we put some if else here. If their condition true, then B statement will execute. If it is false, then again another condition you will get here. So requirement, we can say what would be the requirement like this. For example, program to find out grade of a student when the marks of 4 subjects are given. The method of assigning grade is as, जैसे percentage greater than equal 85, तो उसका grade क्या आना चाहिए? A. If percentage less than 70, percentage less than 85 and greater than equal 70, तो grade क्या आना चाहिए उसका? B. So for this AND operator we can use what? Double AND operator, right? For this at the place of AND we can use double AND operator. So like this we can say percentage less than 70 and percentage greater than equal 55, then the grade would be C. So this types of requirement we can solve by using if else ladder. So I mean try to make the program by using this, giving this program on the group. Okay, I'm sharing this program on the group. Try to solve. If you are not able to solve, so we try to copy. Difficult because it is an image, na. Anyway, let me cut it. Try to make the program, otherwise I'll help you for it. Okay, आप लोग कोशिश करना. Okay. So things would be in this way. Okay. Okay. So next loop में हम लोग बाद में आएंगे. First we are coming towards the switch statement. Okay. So we can see why switch and what is the use of it. If several options are possible, for example, जैसे if else ladder, multiple ladders if we are putting, so it is not a good practice. If several options are possible, then it is never recommended to use if else. We should go for switch. बहुत सारे if else अगर जहाँ पे नीड हो रही हो पुट करने की, तो उससे बेहतर है कि आप क्या यूज करिए? स्विच, है ना. मल्टीपल if else ladder नॉट रिकमेंडेड टू यूज. प्रॉब्लम क्या होती है उससे? मल्टीपल if else से परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है आपके सिस्टम का. ओके, सो आई मीन व्हेन आई जॉइन प्रीवियस प्रोजेक्ट, तो पहला टास्क हम लोगों को ये दिया गया था कि कभी कभी हमें सिस्टम का परफॉर्मेंस और कोड ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होती है. तो उस समय अगर आपके बहुत सारे इफ एल्स लेटर आपने पुट कर रखे हैं, तो बेहतर है कि आप उसको रिप्लेस कर दो स्विच स्टेटमेंट से, जिससे उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. ओके, इफ सेवरल ऑप्शंस आर पॉसिबल देन इट इज नेवर रिकमेंडेड टू यूज इफ एल्स. बहुत मल्टीपल इफ एल्स लगाना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इससे आपके क्या होता है? प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? स्लो. वी शुड गो फॉर स्विच स्टेटमेंट. स्विच का सिंटेक्स क्या होगा? स्विच एंड आर्गुमेंट. जैसे आपका यहाँ पे क्या था? इफ हियर इट वाज दी समथिंग
So let me show you in this way. If I was putting here if, मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल है राइट गाइस? If I am putting here if I am putting here if, I can write in this way, if a less than b something, some condition we are putting here, right? तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ इफ आर्गुमेंट, है ना? इफ का आर्गुमेंट हम यहाँ पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू होनी चाहिए ट्रू या फॉल्स। ओके, बुलियन टाइप की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए इफ के लिए। बट स्विच के केस में क्या है, सारा स्मॉल रहेगा, ठीक है? जो भी वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे, ओके, वॉट एवर वैल्यू वी आर गोइंग टू पास, इसके लिए जरूरी नहीं कि ये बुलियन हो, ठीक है? इट इज नॉट कि इसकी जगह पे यहाँ पे बुलियन हो। फॉर एग्जाम्पल केस वन जैसे जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू पास की है वो मैच करेगा केस वन से। अगर वैल्यू ट्रू है, आई मीन केस वन से मैच कर जाती है, केस वन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है? तो अब यहाँ पे कितने कीवर्ड आप लोगों के लिए नए हो गए, एक तो स्विच आ गया प्लस एक केस हो गया, ठीक है? देन एक्शंस इज अ सिंपल, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दो आप इसकी जगह पे, एनी स्टेटमेंट यू राइट हियर। एक कॉलन सिंबल भी आ गया यहाँ पे, राइट? सो बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं यहाँ पे, मतलब चॉइस है आपकी, ठीक है? अगर चॉइस केस वन से मैच कर जाती है, स्विच केस वन से मैच कर जाती है, एक्शन वन एग्जीक्यूट होगा, केस टू से मैच करेगा, एक्शन टू एग्जीक्यूट होगा, किसी से भी अगर केस मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखें कि कर्ली ब्रेसेस आर मैंडेटरी, है ना? ये जो दिख रहे हैं ना कर्ली ब्रेसेस, ये क्या है यहाँ पे? मैंडेटरी। इफ के केस में क्या थे? ये ऑप्शनल, है ना? इफ के केस में क्या थे? ये ऑप्शनल, है ना? इफ के केस में अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं तो ओनली क्या करेंगे? वन स्टेटमेंट वुड एग्जीक्यूट, ओके गाइस? बट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्या है आपके? मैंडेटरी। बोथ केस एंड डिफॉल्ट आर ऑप्शनल। अब ये जो केस लिख रहे हैं ना, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर एंड डिफॉल्ट, ये ऑप्शनल है। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग स्विच, है ना, विदाउट यूजिंग केस एंड डिफॉल्ट, स्विच का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? तो आई मीन हमें लिखना चाहिए, ठीक है? सो बट सिंटेक्स वाइज देखें तो इट इज अ करेक्ट। int x इक्वल टू 10, स्विच में हमने डाला x, और हियर व्हाट वी आर सीइंग कि यहाँ पे बगैर केस के भी हम लोग इसको रन कर सकते हैं। तो विद इन द स्विच एवरी स्टेटमेंट शुड बी अंडर सम केस और डिफॉल्ट, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्विच यूज कर रहे हो, कोई केस या डिफॉल्ट केस आपने नहीं लिखा है और डायरेक्टली यू आर राइटिंग एनी स्टेटमेंट, तो ये आपकी अलाउड नहीं होगी। आइदर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, अगर इसमें स्टेटमेंट लिखोगे तो यू विल राइट द स्टेटमेंट विद द केस एंड डिफॉल्ट केस, ओके? सो लेट्स वी कैन सी कि यहाँ पे अगर देखें हम लोग कि स्विच एक्स, वी आर सीइंग हियर स्विच एक्स, एक्स किस टाइप की वैल्यू हो सकती है, राइट? एक्स के अंदर किस टाइप की वैल्यू हो सकती है, तो दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी। तो पहले तो हम देखेंगे स्विच है क्या गाइस। स्विच क्या है? व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट? इफ एल्स बहुत सारे इफ एल्स का मल्टीपल इफ एल्स तो लगाते हैं, उसका अल्टरनेट है स्विच, ओके? और मल्टीपल इफ एल्स का आपने प्रोग्राम यहाँ पे देखा ही है ना, यू हैव सीन हियर कि इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा हमें मान लीजिए किसी की परसेंटेज निकालनी है, राइट? ग्रेड निकालना है किसी का, राइट? वेदर पता करना है कि मान लीजिए अगर आपका विंटर है, समर है, ओके, रेनी सीजन है, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट? कुछ ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट हिट किया, ठीक है? ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट हिट किया आपने, ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो अगर आप, इफ यू आर हिटिंग द ब्राउजर रिक्वेस्ट फ्रॉम हेयर, और मान लीजिए जैसे है ना यहाँ से कोई आपने रिक्वेस्ट हिट की, वो रिक्वेस्ट में आपने कोई फॉर्म फिल किया, है ना? फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म फिल किया आपने, लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ इंट, अगर आपने कोई यहाँ से रिक्वेस्ट हिट किया, है ना, व्हेन यू हिट एनी रिक्वेस्ट, ये ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट हिट किया यहाँ से, और रिक्वेस्ट में आप कोई फॉर्म फिल करके सबमिट कर रहे हो, यू फिलिंग दी फॉर्म, ओके? और आपने यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट की, किस पे जाएगी? कंट्रोलर पे, ओके? ये यूजिंग हियर सम कंट्रोलर हियर, ओके? तो आपकी रिक्वेस्ट डेटा सेव करने के लिए यूज हो रही है। अनदर थिंग क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से
डेटा गेट करने के लिए आपने सेंड की, आपने रिक्वेस्ट यहाँ से डेटा अपडेट करने के लिए की यहाँ से, या आपने रिक्वेस्ट यहाँ से डेटा डिलीट करने के लिए किया, या आपने रिक्वेस्ट किया कि हाँ मुझे एक ही डेटा निकालना है बेस्ड ऑन सम आईडी, एक ही रिकॉर्ड निकालना है मुझे, राइट। तो मल्टीपल आप यहाँ पे रिक्वेस्ट दे रहे हो, राइट। और आपका जो यूआरएल बन रहा है, और वो यूआरएल आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यूआरएल चेंज से मतलब क्या है, लेट मी शो यू इन दिस वे। मैं कोई यहाँ पे अमेजन का एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू ओपन, ओके। तो अगर आप इसको गौर से देखना, ये इसका क्या है, डोमेन बोला जाता है इसको ना, www.amazon.in, इट इज डोमेन ऑफ योर एप्लीकेशन, ओके। और यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना HTTPS, लेट मी शो यू, इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ओके, ब्रिंगिंग इट हियर। यहाँ पे हमने लिखा HTTPS www.amazon.in, और बहुत जगह आपने देखा होगा कि इसमें ऐसे भी आता है आपका ना, एस नहीं लगा रहता है ना, तो आपकी वेबसाइट मतलब जो यूआरएल है वो सिक्योर नहीं है। इसलिए कई बार जैसा फ्रॉड हो जाता है, मोबाइल पे मैसेज आया, इस लिंक पे क्लिक करिए आपको इतना मनी मिलने वाला है, राइट। तो आप देखो, सबसे पहले देखना आपको कि आपका जो यूआरएल जो भेजा है किसी ने, उसमें अगर एस नहीं लगा है, इसका मतलब आपका यूआरएल फेक है, सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपके यूआरएल में HTTPS होना चाहिए, तो ये क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होते हैं आपकी रिक्वेस्ट के। और ये आपका डोमेन है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं HTTPS गूगल, सर ये यूआरएल कैसे बनाते हैं वैसे? अभी हम लोग ये एडवांस जावा में पढ़ेंगे, ठीक है। google.com, ठीक है। ये बेसिकली ये डोमेन होते हैं, डोमेन हमें परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये डोमेन भी क्या होता है, परचेज करना होता है हमें, इसके लिए भी वेबसाइट है। आपने शायद ऐड वगैरह सुना होगा, गो डैडी करके कोई ऐड सुना होगा आपने टीवी में कहीं भी, राइट। तो वहां से बेसिकली है ना हम लोग डोमेन परचेज कर सकते हैं। सो एनीवे, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका डोमेन है www.google.com। अब अगर इस पे आप देखोगे तो ये देखिए, अगर अभी अभी क्या है इसका, ये डोमेन होम होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक किया, जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फ्रेश। अब ये जो मैं माउस लेके आ रहा हूँ ना, ये जो माउस लेके आ रहा हूँ, अभी माउस का पॉइंटर कुछ और है, और जैसे ही मैं यहाँ लेके गए हाइपर में चेंज हो गया। तो ये मतलब HTML में हाइपर लिंक से चेंज हो जाता है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजी है कि कैसे हम लोगों को हाइपर लिंक क्रिएट करना है, डेट्स ओके। व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फ्रेश, आप यहाँ से देखोगे आपके यूआरएल को चेंज हुआ, देखा आपने यूआरएल आपका क्या हो गया, यहाँ पे पहले कुछ और था, आप क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। मतलब होम यहाँ तक तो सेम ही है, इसके बाद आपका ALM लग गया, इसमें स्टोर फ्रंट लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, राइट, इक्वल टू, ये आगे क्वेरी पैरम बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्वेरी पैरम है, इट्स ओके। अगर मैं यहाँ अमेजन पे क्लिक करूँ, जी, यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है, ये भी यूआरएल क्या हो गया, चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। लेट मी शो यू इन दिस वे। तो देखिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और हो गया यूआरएल, यहाँ पे कुछ और हो गया। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था, जो मैं बता रहा था आपको, कि आपकी अगर रिक्वेस्ट है, अगर आपकी रिक्वेस्ट है मतलब रिकॉर्ड को सेव करने की रिक्वेस्ट, तो यूआरएल कुछ और होगा, राइट। अपडेट कर रहे हो यूआरएल कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, डिलीट कर रहे हो यूआरएल कुछ डिफरेंट होगा। तो वो जो यूआरएल है यहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाला यहाँ से पॉइंट ले लूँ, या जहाँ से यूआरएल चेंज हो रहा है यहाँ से डिफरेंट हो रहा है, ये अलग हो गया यहाँ से, और यहाँ से मैं देखूँ ये डिफरेंट हो गया है। तो मैं इतना यूआरएल यहाँ पे कंट्रोलर पे निकालूं, यहाँ से फेच करूं, और उसको स्विच में डाल दूं, कि अगर आपका यूआरएल कुछ इस तरह का आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है, तो इसके लिए केस 1 हो गया, केस 1 का यूआरएल उससे मैच कर गया, तो क्या होगा, कुछ हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो दूसरे वाले केस से मैच कर गया तो सेकंड लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, तीसरे वाले से मैच कर गया, तीसरा एग्जीक्यूट होगा। जो किसी से भी मैच नहीं किया तो हम लिख देंगे डिफॉल्ट यूआरएल इज नॉट करेक्ट समथिंग, मतलब इस टाइप से लिख देंगे। तो ये इस तरीके से भी हम लोग स्विच का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे ऐसे ही हम लोग रियल स्विच केस यूज केस की बात कर रहे थे, राइट। तो स्विच क्या होगा, जहाँ मल्टीपल आपके केसेस बने, राइट, मल्टीपल केसेस हो, वहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, स्विच स्विच स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट बहुत सारे इफ एल्स का क्या है, अल्टरनेट, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है
क्वेश्चन नहीं आता, अभी सिंटेक्स की बात करेंगे कि इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस x। ये जो x है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। आप लोगों ने इफ के केस में देखा, राइट, इफ के केस में देखा कि जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो यहाँ पे उसकी फाइनल वैल्यू बुलियन टाइप की आनी चाहिए। किसके केस में, इफ के केस में, राइट। बट स्विच के केस में ये बुलियन नहीं, स्विच के केस में क्या कह रहे हैं, until 1.4 version the allowed data type for switch argument are byte short int char। बाइट टाइप का हो सकता है, शॉर्ट टाइप का हो सकता है, इन टाइप का हो सकता है, कैर टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो गाइस आप बता सकते हो बेस्ड ऑन दी वैल्यू रिप्रेजेंटेड व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर दीस, किस टाइप के वेरिएबल हैं ये, किस टाइप के वेरिएबल सर हैं, प्रिमिटिव 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 वेरिएबल, राइट। प्रिमिटिव वेरिएबल 8 होते हैं, राइट। 8 में से कितने चूज किए इन्होंने, 4। आप इन 4 में से कोई वैल्यू यहाँ से, इस 4 में से किसी भी टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ये स्टोरी कब तक है, अंटिल 1.4 वर्जन, ओके। अभी जावा का कौन सा वर्जन है, 18, ठीक है। तो आफ्टर 1.4 वर्जन इसमें क्या यूज कर सकते हैं, जैसे बट फ्रॉम 1.5, फ्रॉम 1.5 ऑनवर्ड्स इन एडिशन दीज आर दी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस, इनके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे बाइट का बी कैपिटल हो गया बाइट, शॉर्ट का एस कैपिटल हो गया शॉर्ट, कैर लिखते थे तो इसको क्या लिख रहे हैं अब यहाँ पे कैरेक्टर, ये पूरी क्लास बना के दे दी है, मतलब ऑब्जेक्ट दे दिया है। इंट का दे दिया इन्होंने इंटीजर, इनकी करस्पॉन्डिंग क्या दे दी इन्होंने रैपर क्लासेस। ये बोल रहे हैं प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हो, इनकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास भी यूज कर सकते हो, प्लस एक इसमें इनम क्लास है वो भी यूज कर सकते हो आप इसमें। अभी इनम क्लास क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाइट एक प्रिमिटिव है और ये प्रिमिटिव का ऑब्जेक्ट फॉर्म है ये वाला बाइट, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं रैपर क्लास। जैसे क्वेश्चन बनता था, आई मीन 2 टाइम्स आई फेस दिस क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, मैंने अभी तक 2 बार ये क्वेश्चन फेस किया है। इस जावा इज अ 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? द आंसर इज नो। किस कारण नो जावा सर। 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, बिकॉज ऑफ दिस वाइट शॉर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से जावा को 100%, क्योंकि ये वाइट शॉर्ट इंट ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो प्रिमिटिव है, इनकी वजह से जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कह सकते थे। तो बाद में इन्होंने 1.5 वर्जन में क्या दे दिया, एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस दे दी इन्होंने, ठीक है। बाइट आप प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हो और बाइट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हो, एक शॉर्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, दो ऑब्जेक्ट आर नथिंग कॉल्ड दी रैपर क्लासेस। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्विच में 1.4 वर्जन तक अगर जावा का कोई वर्जन आप यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल वाइट शॉर्ट कैर इंट ये आप कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हो, प्रिमिटिव टाइप ओनली। बट फ्रॉम 1.5 ऑनवर्ड्स वी कैन यूज करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास एज वेल, मतलब ये भी यूज करेंगे या इनकी जगह पे कुछ रैपर क्लास भी यूज कर सकते हैं, इनम भी यूज कर सकते हैं। और जावा 1.7 में तो एक चीज और ऐड होगी यहाँ पे, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, मतलब ये जो सर हेलो सर। हाँ, सर इनम इनम क्या है, आपने अभी ऊपर इनम भी एक क्लास है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इनम के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इनम क्या है, क्लास है, कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए यूज होती है इनम, सो वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। स्ट्रिंग भी क्या है, एक क्लास है, राइट। तो अब देखिए आप यहाँ पे ये जो x लिख रहा हूं ना मैं, दिस x, ये जो दिख रहा है ना स्विच x, x की वैल्यू किस टाइप की हो सकती है, तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो x कुड बी one of type from these, okay, either it can be the primitive type or it can be wrapper type, enum type और string type, इनमें से किसी भी टाइप की x की वैल्यू हो सकती है, ओके। सो if we are passing any other type, इनके अलावा अगर कोई और टाइप आप पास करोगे उस x में, स्विच के आर्गुमेंट में, we will get compile time error, okay। so let's we can see here, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाइट b इक्वल टू 10, बताइए जरा 10 किस टाइप की वैल्यू है गाइस, what types of this 10 सर is? स्विच स्विच क्या हमारा वेरिएबल है वैसे? हाँ दोबारा से बोलो काजुल, क्या बोल रहे हो? सर स्विच
स्विच ऐसा वेरिएबल है कि स्विच तो कीवर्ड हो गया ना, प्री डिफाइंड एक कीवर्ड कीवर्ड है। और स्विच का एक आपको समझना, स्विच क्यों यूज कर रहे हैं, जहां आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल चॉइसेस हो आपके पास, मल्टीपल ऑप्शंस हो, उनमें से कोई एक चॉइस आपको मतलब ना एग्जीक्यूट करानी, राइट। आपको कोई चॉइस दिया जाए और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, उनमें से जो चॉइस है आपकी वो मैच कर जाएगी, वो ही जो आपका केस एग्जीक्यूट होगा। दैट इज द यूज ऑफ स्विच। ओके, क्योंकि इफ एल्स का ड्रॉबैक क्या है, बहुत सारे इफ एल्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, एक तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्लस आपका क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है उसमें। व्हाट विल हैपन, परफॉर्मेंस आपका स्लो हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसका जैसे सर हमने एरे के केस में भी किया था, जो इंट इंट बाइट बाइट रिपीट होता था, उसको हमने सेम कर दिया एरे में, उसकी सिंगल वैसे ही एरे किया। यूज कर रहे थे, राइट, सिंगल एरे यूज कर रहे थे। हाँ बट यहाँ पे ये हो रहा है कि मल्टीपल इफ एल्स लेटर आप यूज कर रहे हो, तो आपको ऐसे मल्टीपल इफ एल्स यूज नहीं करने चाहिए। उसकी जगह पे आप क्या यूज कर लोगे, स्विच यूज कर लोगे। स्विच का परफॉर्मेंस फास्टर है देन दी मल्टीपल इफ एल्स लेटर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है स्विच क्या है, SWITCH स्विच क्या है, एक कीवर्ड है। जैसे मैं आपसे बोलूं इफ क्या है, इफ क्या था यहाँ पे, इफ भी एक कीवर्ड था, राइट। इनको क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स, राइट। ये इफ भी क्या है, रिजर्व वर्ड है, राइट। एंड स्विच भी क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, राइट। और ये क्या है, स्विच का आर्गुमेंट है। अब स्विच के अंदर जो वैल्यू जो पास कर रहे हैं, इफ के अंदर पास कर रहे थे, उसका तो फाइनल रिजल्ट आपका बुलियन होना चाहिए, बुलियन टाइप की वैल्यू लेता है वो, राइट। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू लेगा उसका हमने देखा कि कितने टाइप्स की वैल्यू इसमें पास कर सकते हो। आउट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल वन ऑफ वी कैन यूज। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा बाइट बी इज इक्वल टू 10, गाइस तो आप बताइए जरा बी किस टाइप का है, व्हाट टाइप्स ऑफ दिस बी इज, बी किस टाइप का वेरिएबल है, सर बाइट। बाइट, ठीक है। तो हम ये ले सकते हैं, इट इज परफेक्ट। अच्छा, कैर सी एच इजक्वल टू सिंगल कोट में ये पास कर, ये भी वैलिड। अच्छा, तो यहाँ पे एल, तो लॉन्ग टाइप की वैल्यू यहाँ ले नहीं सकते हैं, ले नहीं ले सकते। सकते, ले सकते थे। ना ना, इसमें देखो कहीं लॉन्ग दिख रहा है आपको, नहीं अच्छा। तो लॉन्ग नहीं ले सकते, नहीं ठीक है है, सर। लॉन्ग नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। अच्छा, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, तो बुलियन टाइप की वैल्यू यहाँ ले सकते हैं स्विच में, नहीं नहीं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इनकम्पेटेबल टाइप। यहाँ पे एरर आ जाएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, है ना, फाउंड लॉन्ग, रिक्वायर्ड यहाँ पे इंट था। सो एवरी केस लेवल शुड बी विद इन द रेंज ऑफ स्विच आर्गुमेंट, ठीक है। तो अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। आप जो पास कर रहे हो वो आपके स्विच के केस में क्या होना चाहिए कि जो भी है ना केस लेवल आप पास कर, एवरी केस लेवल शुड बी विद इन द रेंज ऑफ स्विच आर्गुमेंट। मतलब बाइट बी इक्वल टू 10, तो बाइट की रेंज, बाइट की जो रेंज है वो आप सभी को पता है। गाइस एक बार एक और याद दिलाओ, बाइट की रेंज क्या है, आई मीन उसकी कैपेसिटी क्या है बाइट की, -128 से प्लस वन +127 तक हंड्रेड की आप ट्वेंटी पास कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा बाइट बी इक्वल टू 10 और स्विच बी, ये ठीक है, इट्स वैलिड। बट केस जब डिफाइन किए तो एक केस को इन्होंने 1000 ले लिया, तो ये 1000 है वो इसकी रेंज से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे भी आ जाएगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, कि आपका जो केस का जो रेंज है वो आपका जो टाइप की जो रेंज है उस रेंज में ही होनी चाहिए, उससे बाहर ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बाइट बी इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिख रहे हैं b+1, है ना। तो प्लस ऑपरेटर जब लगाते हैं बाइट के साथ में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपको याद हो हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये बाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में, है ना, बाइट विल कन्वर्ट इनटू द इंट। अब इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब ये जो वैल्यू फाइनल बनी है वो इंट बनी है, और इंट की बहुत मतलब काफी रेंज है, 4 बाइट की जगह लेता है, तो ये 1000 उसमें आ जाएगा, तो दिस इज वैलिड नाउ। अदरवाइज आप बोलोगे यहाँ पे कि यहाँ से बाइट को हम पास कर रहे हैं, ये तो ठीक, ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, यहाँ भी तो बाइट ही वैल्यू पास कर रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहा है, ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि बाइट अब कन्वर्ट हो गया इंट में, क्योंकि यहाँ +1 कर दिया, और इंट की जो रेंज है वो
1000 से भी ज्यादा आप इसमें स्टोर कर सकते हो. So every case label should be a valid compile time constant. If we are taking variable as case label, we will get compile time error. Example, int x is equal to 10, int y is equal to 20. So we are putting हेलो here. सर, Mhm. सर बाइट को हमने +1 कर दिया तो इंट में कैसे हुआ कन्वर्ट? वो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, वेरिएबल्स में पढ़ा था काजल. अभी उसमें जाएंगे तो हम और मतलब है ना उसमें मिन मैक्स इंटरनल, आप दोबारा से नोट्स को रिव्यू करना, आपको पता लग जाएगा कि ये हम ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं. ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट इट्स ओके कि उस समय हमारा ये भूल गए हम लोग, फोकस नहीं गया. बट ये इंटरनल क्या करता है, जैसे हम ये कहाँ पढ़ा था हमने, प्लस प्लस का इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे थे ना हम लोग. जैसे ए प्लस प्लस किया आपने, राइट, ए प्लस प्लस किया, तो अगर मैं आपको यहाँ लिखूं इंट ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है, और ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, तो बताइए जरा ए की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए? काजल, क्या वैल्यू होगी ए की? प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद करो थोड़ा सा, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें. ए प्लस प्लस किया, इसका मतलब क्या है? A equal to A+1. इसका मतलब होता है यहाँ पे होता है ए इक्वल टू A+1. That is 11. अब इसकी वैल्यू क्या हो जानी? 11 हो जानी है, इसका मतलब 11 हो जाएगी, राइट. बट Yes, सेम sir. चीज अगर इसमें देखेंगे ना हम, यहाँ पे देखो बाइट बी इक्वल टू, मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम यहाँ पे बाइट, सॉरी गाइस, बाइट बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, अगर मैं ये लिख रहा हूँ फिर तो ठीक है. इफ आई एम राइटिंग बी प्लस प्लस, अगर मैंने ये लिखा है, तो अभी बी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी गाइस? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी यहाँ पे? 11, राइट, करेक्ट. अगर इसकी जगह मैं ऐसे करता बी इक्वल टू बी प्लस 1 कर देता, तो क्या ये वैलिड सिंटेक्स है? कोई मुझे बता सकता है, इज इट वैलिड सिंटेक्स? याद, आप लोगों को थोड़ा सा याद हो इसके बारे में. जैसे ही प्लस किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? Int में इंट हो गया. और बी किस टाइप का है अभी? byte. तो यहाँ पे आ जाएगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, एरर आ जाएगा. ये जब प्लस करते हो नॉर्मल, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा. इंट में कन्वर्ट इंटरनल कैसे होगा वो आप थोड़ा सा नोट्स रेफर कर लेना. वो जब इंट में कन्वर्ट होगा तो इंट टाइप की वैल्यू क्या बाइट में स्टोर कर सकते हैं? नहीं. आपका डेटा लॉस हो जाएगा, राइट. जब जैसे ही डेटा आपका लॉस हुआ तो क्या बोलते हैं, हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, कंपाइल टाइम एरर दे देगा. नाउ वी कैन सी, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एवरी केस लेवल शुड बी वैलिड कंपाइल टाइम कांस्टेंट होना चाहिए. If we are taking variable as case level, we will get compile time error. Example, int x is equal to 10, int x is equal to 10 लिखा, ठीक है, int x is equal to 10 लिखा हमने, ठीक है, int y is equal to 20 लिखा हमने, ठीक है. अभी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, ठीक. सोच में हमने डाला, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग केस 10, और उसी आउट में हमने 10 प्रिंट करा लिया, केस y. अब आप देखो y क्या है गाइस, ये कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल है भाई? इंट y इक्वल टू 20, ये क्या वेरिएबल है, राइट. और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती रहती है गाइस? चेंज होती रहती है, यूज होती है. हाँ, करेक्ट. तो जब ये कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट तो है नहीं, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. केस में कभी भी आप है ना ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जो चेंज होती रहती है, ठीक है गाइस. सो अगर आपने ये y ले लिया यहाँ पे, तो हु नो अभी 20 है, इसकी जगह पे 500 आ जाए, 500 के सही नहीं आपका, तो मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे. तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे, ठीक है. अगर इस बाई को यहाँ फाइनल कर देते ना, देन हम बाई को यहाँ ले सकते थे, फिर फिक्स हो जाता कि इसकी वैल्यू 20 है अब, राइट. तो ये यहाँ पे इंट बाई इक्वल टू 20 है, लेकिन ये फिक्स नहीं है ना. वेरिएबल की तो वैल्यू यही होती है, वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? द वेरिएबल विच वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंजेस. ओके, सो इसकी ये बात करें कि आपको यहाँ पे वैलिड क्या लेना होगा, है ना. एवरी केस लेवल शुड बी वैलिड कंपाइल टाइम कांस्टेंट, वी नीड टू टेक हियर. ओके, ओके. सो नेक्स्ट, इफ वी आर डिक्लेयरिंग y एज फाइनल, देन वी वोंट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर. अगर y को आप फाइनल कर देते हो
तो हमें कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हियर expression are allowed for both switch argument and case level, but case level should be constant expression. Means int x is equal to 10 और यहाँ पे लिख रहे हैं x plus 1, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, what would be the value here? x plus 1 किया तो वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 11। 11। केस क्या दिया 10 दिया हुआ है, राइट। देन केस क्या दिया 10 plus 20, तो मतलब यहाँ 30 केस हो जाएगा। तो कोई केस मैच नहीं करेगा, बट इट्स अ वैलिड। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन आर अलाउड फॉर बोथ स्विच, स्विच आर्गुमेंट में भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, एक्सप्रेशन मतलब कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हो, एंड केस लेवल में भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो इट इज अलाउड। डुप्लीकेट केस लेवल आर नॉट अलाउड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने केस 1 ले लिया अगेन फिर से केस 1 ले लिया, तो डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। एग्जांपल इंट x इज इक्वल टू 10। अब x का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x इज हियर, यहाँ पे कितना वैल्यू है इसका 10 है, ठीक है गाइस। तो आप देखिए जरा, केस 97 ले लिया तो ये 97 प्रिंट कर रहा है, 98 ले लिया, 99 ले लिया, केस सिंगल कोट में ए ले लिया। आप बता सकते हो ये अभी इसके अब हमने क्या पढ़ा था, डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। इसमें पहले तो ये बताओ कोई डुप्लीकेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, एनी नंबर एनी केस आप डुप्लीकेट आपको यहाँ समझ पड़ रहा हो? फर्स्ट 197, पहला केस क्या 97, और कैरेक्टर ए की वैल्यू भी क्या होती है, यूनिकोड वैल्यू क्या होती है 97। 97 90 डुप्लीकेट केस अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। इन सबको हम प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे, अभी तो जस्ट हम समझ रहे हैं कि एक स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज कर सकते हैं, किसका अल्टरनेट है, प्लस हम लोग स्विच के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर केस ले रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, स्विच के अंदर आर्गुमेंट ले रहे हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो हम लोगों को अब जो भी हमने पढ़ा इसको इन्होंने समराइज किया है। जो केस लेवल है ना, केस लेवल आप समझ जाओ, केस लेवल ये है, ठीक है। तो केस लेवल के लिए 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। इट शुड बी कंपाइल टाइम कांस्टेंट, कंपाइल टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वैल्यू जो हो वो फिक्स हो, वैल्यू आपकी ऐसी ना हो कि वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हो, राइट। कंपाइल टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सप्रेशन आल्सो अलाउड बट शुड कांस्टेंट एक्सप्रेशन, मतलब प्लस कर सकते हो, जैसे आपने लिखा 20 + 30 कितना हो गया 40, तो ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें a + b लिखोगे तो a की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, b की चेंज हो सकती है, इसके लिए बोल रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन अलाउड है फॉर बोथ, मतलब ओके। वैल्यू शुड बी विद इन द रेंज ऑफ स्विच आर्गुमेंट। तो स्विच आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि आपने वाइट का ले लिया और इसमें मोर देन 127 से वैल्यू वाला केस आप बना रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। तो ये 4 पॉइंट हमको याद रखने होंगे किसके केस में, केस लेवल के केस में हमें 4 पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, सर एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देना 4 केस को। इनको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हमें समझ पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ इट्स अ टाइम टू डू दी प्रैक्टिकल। ओके, तो जो हमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है गाइस। सो लेट मी ट्राई टू क्रिएट हियर, अभी हम फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, राइट। इनसाइड दिस फ्लो कंट्रोल आई एम जस्ट, देखिए इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ एल्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो इफ एल्स है। तो इफ एल्स में आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं केवल आपने बस नॉलेज ले लिया एंड प्रोग्राम यू हैव सीन हियर और जस्ट एंजॉय द आउटपुट, नो, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको इस बुक से मिल जाएंगे, डेप्थ एंड सी बुक से। ओके, वहां से क्वेश्चन पिक करिए, फिर आप अलग अलग प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए। अभी जो इसमें जो हमने जो प्रोग्राम देखे ना, ये तो जस्ट इसी के थे, आगे इसके एक्सरसाइज भी होंगे इसमें, तो वो एक्सरसाइज के प्रोग्राम आप वहां से पिक कर सकते हो, ठीक है। स्विच डेमो, जस्ट आई एम क्रिएटिंग वन प्रोग्राम है स्विच डेमो। तो स्विच सिंटेक्स क्या होगा, ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ओके, SWITCH ये स्मॉल में होगा, ठीक है गाइस। ये इसका क्या हो गया आर्गुमेंट।
और ये इसकी क्या हो गई बॉडी, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंट x इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे सम 3 आई एम टेकिंग है, कुछ मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो x को मैं यहाँ पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, व्हाट आई विल राइट हियर, केस 1 कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ। केस 1 में मैंने लिखा है यहाँ पे, आई एम राइटिंग हियर केस 1 और आई एम पुटिंग हियर, मैं सिंगल कोट में ऐसे 1 यहाँ प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग के फॉर्म में मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे मुझे लगाना होगा ब्रेक, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। अभी एक नया एक, हेलो सर। हाँ सर हमने इंट x इक्वल टू 3, तो 3 की वैल्यू हमने यहाँ स्विच में लिया है, मतलब 3 यहाँ पर लिया है x के अकॉर्डिंग ना। x की वैल्यू 3 है, ये तो हमें पता है, इंट x इक्वल टू 3, तो हमने x को यहाँ पास कर दिया, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है, x 3 है। इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे केस लिख रहे हैं, अलग अलग केस लिख रहे हैं हम लोग, कि केस 1 x की वैल्यू तो 3 है, तो 1 से तो मैच नहीं करने वाली, राइट, 1 से मैच नहीं करेगी, राइट, तो हम लेकिन केस लिख रहे हैं, ये राइटिंग है केस, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ओके, और देन आई एम राइटिंग हियर ब्रेक, ब्रेक, अभी ब्रेक के बारे में पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, अभी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। केस आई एम राइटिंग हियर 3, देन स्विच आउट एंड आई एम पुटिंग हियर सम 3, ठीक है गाइस, तो ब्रेक, देन, तो ये डिफॉल्ट केस, अगर कोई केस मैच नहीं किया, एनी केस डज नॉट मैच, कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट, not a number, some, I mean number is not in range, okay, number is not in range, entered number is not in range, okay, जो भी आपने नंबर एंटर किया वो इसकी रेंज में नहीं, कोई अगर नंबर आपने, जैसे हमारा अभी रेंज क्या है 1 2 3 ही रेंज है, ठीक है, तो 1 2 3 में अगर पेज आप पुट करोगे तो यहाँ पे इसमें से एक केस मैच कर लेगा, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं पहले तो अभी बताइए, अभी ये कौन सा, देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो अभी x की वैल्यू क्या है 10 है, और केस 1 को मैच करेगा, 1 से मैच करेगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे बाहर हो जाएगा, फिर 2 में मैच करेगा, इससे भी नहीं मैच किया, फिर 3 में मैच करेगा, केस 3 मैच कर गया x, है ना, तो केस 3 मैच करेगा, तो यहाँ पे 3 को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, लेट मी ट्राई टू रन इट, ओके गाइस, सी, तो ये 3 इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि 3 हमने डबल कोट में लिख रखा है, इसलिए 3 प्रिंट कर दिया, ओके। अगर मैं इसकी जगह 5 कर देता हूँ, तो आप लोग बता सकते हो आउटपुट क्या होगा, अगर मैंने 5 किया है तो मैच नहीं होगा सर, मैच नहीं होगा, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट एंटर नंबर इज नॉट रेंज, है ना, एंटर नंबर इज नॉट रेंज, तो डिफॉल्ट कौन सा हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई इसमें रेंज, इसकी कोई केस इसमें मैच नहीं किया तो, ठीक है। अब जो अलग अलग जो पॉइंट है ना केस वाले, वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, सर। वेरीफाई कैसे कर सकते, हाँ सर इसी प्रोग्राम को हम इस साइड से भी कर सकते थे ना। हाँ, इफेल से भी कर सकते थे हम, है ना, इफेल से भी कर सकते थे इस प्रोग्राम को, ठीक है, इफेल से भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा इफेल्स लगाना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मल्टीपल इफेल्स लगाना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एक दो तो समझ पड़ता है ना, 1 2 3 अगर कंडीशन है देन इट्स ओके, अगर आपका 4 5 6 7 अगर आपके इफेल्स व्हेन यू आर पुटिंग, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे हम लोग, स्विच, क्योंकि रिलेटिविटी मल्टीपल इफेल्स में आपका स्विच का जो परफॉर्मेंस है वो हाई है, ओके। तो कई बार आपको काम भी दे सकते हैं ये लोग, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रहा है, हमें इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, ये टाइम काफी ले रहा है, किसी बटन पे क्लिक कर देते हैं तो बहुत टाइम लेता है डेटा लोड होने में, हालांकि अमेजन तो बहुत बड़ा ब्रांड है, क्लिक करते ही
आई मीन बहुत फास्टली, ये तो देखो सेकंड में इसने डेटा यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया, बट कई बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं, क्लिक कर दिया आपने, बहुत टाइम ले रही है ओपन होने में, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस स्लो है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए देयर कुड बी अ मल्टीपल वे, बहुत सारी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे उसमें कि क्या क्या कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें से स्विच भी एक हो सकता है कि जहां बहुत सारे इफ एल्स हैं उसकी जगह पे क्या यूज कर लो, स्विच यूज कर लो। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल इफ एल्स के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं गाइस, स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिवली जो फोर जो वे थे इसके, है ना, फोर जो हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें ना, फोर इन पॉइंट्स को हम लोग प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक समझ रहे हैं कि नहीं। तो जस्ट आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विथ यू, ओके, तो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विथ यू, ओके। सो आप इसको बनाना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड इफ एल्स के प्रोग्राम आप कहाँ से पिक करने वाले हो, इफ एल्स के प्रोग्राम आप कहाँ से पिक करोगे, और ये जो मैंने इमेज भेजा है इसको ट्राई करना आप बनाने का इफ एल्स से, मल्टीपल इफ एल्स यूज कर सकते हो आप लोग, ट्राई करना, ठीक है। सो अभी एक चीज मुझे आप लोगों से आई जस्ट वांट टू नो कि फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द थ्री, किस किसने प्रोग्राम बनाया है फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द थ्री। प्रभात, डिड यू ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम, फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द थ्री, या फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द टू, टू Yes, नंबर में sir. कोई ग्रेटर नंबर पता करना है, डिड यू मेक दिस प्रोग्राम। Yes, sir. काजोल, 3 वाला भी है. हाँ काजोल, डिड यू मेक द प्रोग्राम फाइंड द नंबर ग्रेटर नंबर फ्रॉम द टू, टू से ग्रेटर पता करना हो, थ्री से ग्रेटर पता करना हो, डिड यू ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। प्रदीप आपने बनाया नो सर, हमने नहीं बनाया। नहीं, आप इसका प्लीज प्रैक्टिस करना, अदरवाइज हम लोग को स्विच वो इफ एल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, फाइंड द नंबर ग्रेटर नंबर फ्रॉम द टू, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम द थ्री, ओके। देन एक मैंने जो इमेज भेजी है इसको ट्राई करना, अदरवाइज कल मैं इसको भी आपको, ये प्रोग्राम भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम ऑल्सो बी अबाउट टू दिस वन, ओके। आप इसको ट्राई करना, इफ यू कैन मेक, अदरवाइज आई विल हेल्प यू हाउ वी कैन डू दिस, ओके। फिर सेम चीज फिर हम लोग इसमें स्विच के देखेंगे, ठीक है। तो स्विच का वन ऑफ प्रोग्राम आई हैव गिवन, आप लोग ऐसे ट्राई करना। आगे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, फॉल थ्रू की प्रॉब्लम आती है इसमें ना, फॉल थ्रू, वी आर गोइंग टू सी दैट, इसमें किस टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, राइट। आप देख देख के प्रोग्राम बनाना, ठीक है। सो आई थिंक फॉर दी टुडे आई हैव डन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, नो, तो प्लीज मेक दिस प्रोग्राम, ओके। स्विच का एक प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, इफ एल्स का एक प्रोग्राम बनाना, ठीक है। देवारियन, जो आपने सी में पढ़ा होगा ना, इफ एल्स सेम ही है यहाँ भी, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आप ट्राई करना, ठीक है। ओके सर। इफ एल्स का प्रोग्राम बनाना, और देन फिर स्विच का आप देख देख के टाइप करना, ठीक है, आइदर इन जावा, आइदर इन सी, एनीवेयर यू कैन ट्राई टू मेक इट, ओके। सो आई थिंक ओके, सो लेट्स वी कैन मूव, हम लोग आगे जो हमारा सिलेबस लेफ्ट है ना उस पर चलते हैं। पेज नंबर 28 एंड वी रीच ऑन 107, है ना, 107 एंड पेज नंबर 28, ओके। तो इसमें हम लोग एरे पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द एरे, राइट। सो एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, लेट मी आस्क टू प्रभात एंड अंजलि, एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। No, sir. नो सर। ओके, सो सिंगल डायमेंशनल एरे आपको समझ पड़ गया, राइट। बट आई डोंट नो आप लोग प्रैक्टिस इसकी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, ओके। सो एरे हम किसी भी प्रिमिटिव टाइप का एरे बना सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप सभी को मालूम है, प्रिमिटिव डेटा टाइप सभी को मालूम है, बाइट, शॉर्ट, Yes, sir. लॉन्ग, फ्लूट, डबल, कैर, बुलियन, राइट।
इनमें से किसी भी टाइप का हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जिस टाइप का आप एरे बना रहे हो उसी टाइप की वैल्यू आप इसमें ऐड कर पाओगे। जिस टाइप का आप एरे क्रिएट कर रहे हो उसी टाइप की वैल्यू उसमें आप क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट आपने बनाया, इंट टाइप की वैल्यू ऐड कर पाओगे, राइट। कैर बनाओगे, कैर टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो एरे में, राइट। तो हमारे जितने भी प्रिमिटिव टाइप है कोशिश करिए कि हर प्रिमिटिव टाइप का एक एरे आप बना लो। कैसे बनाओगे आप, है ना, एरे डेमो फॉर एरे इंट, है ना, इंटीजर टाइप का एरे बनाओ, है ना, एरे कैर, ओके, एरे बूलियन, एरे फ्लूट, एरे डबल, इस टाइप के सारे प्रैक्टिस का आप क्या करो, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 2, इस तरीके से आप क्या करोगे, सबकी प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। तो सभी लोगों को एक एक प्रोग्राम, एटलीस्ट सेम प्रोग्राम आप चाहो तो हर एक उसमें प्रिमिटिव में आप बना लोगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी टाइप का एरे बना सकते हो, प्रिमिटिव टाइप का एरे बना सकते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप का एरे बना सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का एरे बना सकते हो। हमारी एक स्टूडेंट क्लास होती है उस टाइप का भी हम लोग एरे बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें हम लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैकेज बनाया था, सम डेमो पैकेज, आई थिंक आई क्रिएटेड हियर, राइट, डेमो पैकेज, ओके। सो इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया था। तो आप सभी लोग इसको यू नो बता पा रहे थे कि इसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, हाउ वी कैन फेच दैट वैल्यू। हम लोग जैसे ना जीरो इंडेक्स पे हमने अंजलि ऐड किया, जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे अंजलि प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर जीरो इंडेक्स पे हमने ए किया और जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे तो ए यहाँ पे प्रिंट कर देगा, राइट। तो अब इसमें और इसमें